इस सेक्शन में हम देखेंगे सेक्युलरिज्म एंड रिलीजन and how they are interconnected with Article 25 of Indian Constitution. First of all, we see the term secular. यहाँ पे देखेंगे the term was inserted in the preamble by 42nd Amendment 1976. In India, a secular state is never considered as anti-God or religious. It only means that a state will be neutral with respect to any religion. It will safeguard its all religions and treat them equally. It means that a state will not have its own particular religion. It will be like religionless. उसके लिए हर एक धर्म एक जैसे हैं. उसकी ड्यूटी है उन सब धर्म का जो इंटरेस्ट है उन लोगों के प्रति उसे सेफगार्ड करना. स्टेट सेक्युलर तभी है जब वो किसी भी रिस्पेक्टिव रिलीजन के प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन में इम्पेडिमेंट नहीं लाता है. ऑन द अदर हैंड, द प्रैक्टिस, प्रोफेशन, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन भी ऐसे होने चाहिए कि वो स्टेट के किसी मशीनरी को इन्फ्रिंज ना करें. सो एक तरफ स्टेट है, एक तरफ रिलीजन है. सेक्युलर टर्म बीच में है जो कि एक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हैंडल करता है दोनों के बीच. स्टेट सेक्युलर तभी है जब वो किसी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट ना करे और किसी पार्टिकुलर रिलीजन को लेके अन्य रिलीजन जो है उनके इंटरेस्ट को इंक्रोच ना करे. देन द कंडीशन ऑफ सेक्युलरिज्म विल एग्जिस्ट. ऑन द अदर हैंड, रिलीजन जो है, एवरी रिलीजन, रिस्पेक्टिव रिलीजन्स, उनका भी ये ड्यूटी है कि जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लेजिस्लेशन है या एनी मशीनरी, द स्टेट की मशीनरी, उसके काम में अवरोध ना करे रिलीजन अपने किसी विम्स से, किसी ट्रेडिशनल हैबिट से, अपने किसी ऑब्जर्वेशन से, एक्सेट्रा. So here it is quite clear that secularism means that a state will be neutral with respect to any religion. Not promote a specific religion and include the interest of other religions. There will be no discrimination of people on ground of their religion. For example, if there is some person, Sikh, Muslim, Hindu, Jain, Parsi, etc., then just based on their religion, the state will not discriminate in the administrative facilities or whatever privileges or rules and regulations, etc., with point of view of their religion. All people are equal in the eyes of the state and law. A state will not interfere in manner of worship by any man to his God. It means that it is a pure conscience of any man and the faith towards his God, and it is his complete right about that how he will worship his God. It is a matter of faith and belief. So a state will not interfere in his way of worshipping. Any man is free to choose his God and worship the God in the manner he likes.
Here I will try to add that even someone is Hindu or someone is Muslim or Sikh, Isai, etc. एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के गॉड को भी वर्शिप कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, उसके रिलीजन को प्रैक्टिस को कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। अब देखते हैं रिलीजन के बारे में। इट हैज नो एनी प्रॉपर डेफिनेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Religion is not codified in the Constitution. It is a matter of faith and belief. It prescribes a code of certain ethics and conduct for its followers to accept and obey. It allows one to connect with his God in the manner he likes. Integral features of any religion are its rituals, ceremonies, dress, food, festivals, holy textbook, worship modes, etc. रिलीजन ना किसी आर्टिकल में है, ये ना कोई जैसे वी हैव अदर लॉज एंड वी हैव मैनी एक्ट्स, सिर्फ रिलीजन को लेके ऐसे कोड्स नहीं बने कि ऐसा ही होना ही हो चाहिए एंड स्टेट इज डायरेक्टिंग द पीपल ऑफ इट्स नेशन दैट टू ऑब्जर्व, प्रोफेस, प्रैक्टिस in that like manner. A state has fundamentally nothing to do with any profession, practice and propagation of any religion. Religion कैसे पहचान में आना आता है? एक हिंदू रिलीजन है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक क्रिश्चियन है, एक ज्यूज है, एक्सेट्रा, जो रशियन है. How they are distinguished and how a state is neutral towards every religion. Here are the points. Rituals. हर एक धर्म का रिचुअल्स किसी भी चीज के प्रति, जन्म से लेकर मरण तक, मैरिज, डिफरेंट टाइप्स होते हैं. सेरेमनीज लाइक मैरिज सेरेमनीज, बर्थडे सेरेमनीज भी डिफरेंट होते हैं. मैनी ऑब्जर्वेशंस लाइक संन्यास जीवन, गृहस्थ जीवन are also typically different in different religion. Dress code. क्रिश्चियनिटी का ड्रेस कोड, मुस्लिम का ड्रेस कोड, एक हिंदू का ड्रेस कोड, इवन अबाउट द प्रीस्ट एंड द पुरोहित्स we can see some differences. These are the distinguished features. Food. A staple food of every religion, even जो प्रसाद जो होता है हर एक रिलीजन में देखा गया है कि अलग अलग तरीके से होता है. ऑल्दो हर एक धर्म एक ही भगवान को मानता है, लेकिन भगवान के भी जो डेटीज होते हैं, जो रूप होते हैं जिसे वर्शिप करते हैं, उसमें कुछ में डेटीज को करते हैं, कुछ डेटीज को नहीं करते हैं, लेकिन आस्था सबकी वही है. दे हैव द सेम फेथ, दे हैव द सेम बिलीफ. वर्शिप मोड सबका डिफरेंट है. द gesture, posture, the style of prayer, every religion has different. And now here it is to understand how the state is secular, secular and it is neutral towards the every religion. वो ये नहीं कहता है कि भाई इसमें ऐसे प्रेयर होता है तो तुम भी अपने रिलीजन में ऐसे ऐसे करो. हमने एक ऐसा रूल किया है कि जिसमें एक इसी टाइप से प्रेयर हो, ऐसा नहीं है. सबके होली टेक्स्ट बुक अलग है. बाइबल, कुरान, गीता, ये सब अलग अलग हैं. इसमें अलग अलग एपिक्स हैं, स्टोरीज अलग अलग हैं.
State has nothing to interfere with these things. Festivals भी every religion के अलग अलग हैं. State has nothing to interfere with it, but to celebrate them, to let the people celebrate happily, cordially, and people of other religions are also invited to join the people of the respective religion who are celebrating that festival at that time. So this is the essence of secularism. But all this, एक जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है इस रिलीजन का और सेकुलरिज्म का, ये डिफाइन है आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. हियर वी सी freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, but there are some conditions. It is subject to public order, morality, health and to other provisions of part 3 of the Indian Constitution. इसका मतलब यह हुआ कि आप फेथ तो रख सकते हैं गॉड पे, बिलीफ रख सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं या नमाज पढ़ सकते हैं या चर्च बेल बजा सकते हैं चर्च में, या एक्सेट्रा एवरी धर्म के जैसे जैसे हो प्रैक्टिस होते हैं आप प्रोपोगेट कर सकते हैं. बट आपके इस कार्य से स्टेट के किसी भी हार्मोनी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी से जो सिस्टमैटिक ऑर्डर है सोसाइटी का वो बिगड़ना नहीं चाहिए, कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई एनार्की नहीं होनी, कैओस एनार्की नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की मोरालिटी या जो कहा जाए कि किसी चीज की अवमानना होना शुरू हो जाए किसी धर्म के प्रोपोगेशन के वजह से, ऐसा ना होना चाहिए. इवन देयर आर सम हैबिट्स और रिचुअल्स इन एवरी रीजन्स कि उसे देखा गया कि उससे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है कि उससे कोई ऐसी एपिडेमिक और एंडेमिक बीमारी फैलने का डर ना हो जिससे स्टेट विल बी इन डेंजर. तो वहां पे कुछ स्टेट हैज द फुल राइट टू पुट द रिस्ट्रिक्शन. प्रोपोगेशन से हम समझते हैं कि रिलीजन को प्रोपोगेट करना तो सही है, लेकिन इट इज ऑलवेज रॉन्ग दैट आप किसी को दूसरे धर्म के का धर्म परिवर्तन अपने में करा रहे. स्टेट नेवर अलाउज दैट एंड इट हैज अ फुल राइट टू इंटरफेयर इन दैट केस. State is empowered by law as per in Article 25 in regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. यदि स्टेट को कुछ ऐसा फाइनेंशियल घाटा हो रहा हो या कुछ थ्रेट हो जिससे उसके स्टेबिलिटी पे चैलेंजेस आ जाए, इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाए, पॉलिटिकल चैलेंजेस आ जाए, ट्रीजन का केस बन हो या कुछ इन्फिल्ट्रेशन का केस बन सकता हो या कुछ टेररिज्म हो सकता हो, कुछ राइट और या इंटरनल डिस्टरबेंस की संभावना हो, इन दैट केस it has a full right to put the restriction or regulate the practices of the any respective religion. It has state is empowered by law for providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institution of a public character to all classes and sections of Hindus. All classes means गरीब से राजा, रंग से लेके राजा तक. It will not categorize or distinguish or discriminate the people on basis of different backgrounds. So
It was all about the secularism, religion, and Article 25. Hope you would have liked this presentation. Thank you. Thank you, everybody.